ओके, इवेंचुअली 50-50 का रूल तो मिनिमम आएगा, आगे देखना. ओके, सो but was it only getting? No, I was also giving love to my mom. She was getting love out of breastfeeding me. I was giving away love to my grandparents. They were happy receiving my whatever, you know. Okay, so subconscious giving. तो देखिए सर जी, नमस्कार. नमस्कार, वेलकम सर. Okay, so first phase is subconscious getting and subconscious giving. Going to school, teacher, knowledge, love, you know. And then when I started growing up, I started realizing कि यार ये नेचर में कुछ तो भी, there is a system of getting and giving. Nobody taught me this. It was realization somewhere कि भाई somebody must have used the word. ए भाई छाबरा, my first name is Kaval. Kaval, it is all about getting and giving, or all about giving and getting, you know. That is the law. तो वो चीज़ अंदर घुस गई थी. And I studied the law of nature, that yes, everything is about the exchange of emotions. It is all about exchange of requirements, needs, you know. Then with this background, my mind started going philanthropic. कि यार अगर आपको रिच बनना है, रिच, मेरी रिचनेस की डेफिनेशन शुरू से थोड़ी डिफरेंट थी. रिच बनना है तो आपको रिच बनना पड़ेगा बाय योर डीड्स. इन फिलॉसफी ज्ञानी लोग उसको बोलते हैं कर्मा, बाय योर कर्मा. एंड यू बिकम इन कर्मा, यू बिकम रिच बाय गिविंग. इन मनी you become rich by getting. Okay, so ये माइंड में आ गया कि मेरे को यार रिच बनना है. इधर जाकर दिस वॉज वाइल आई वॉज स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ योर एज. बाय चांस ये प्रश्न जो आपने मुझे पूछा है ना, यू आर माई फर्स्ट बच्चा लोग हु हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. बहुत तरह के बहुत क्वेश्चंस आए, पर ये रूट लेवल का क्वेश्चन आज मैं पहली बार आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ. तो नाउ टुडे व्हेन आई एम गोइंग बैक टू माय लाइफ, आई रियलाइज आई मस्ट हैव बीन अबाउट योर एज व्हेन दिस थॉट केम टू माय माइंड. एंड दैट इज़ वेयर माय लाइफ स्टार्टेड टेकिंग डायरेक्शन. मैंने कवियेश्वर साहब अभी एक बुक लिखी है, बुक कंप्लीट हो गई है, आपने उसका विमोचन करना है. हाँ हाँ, पर ये जो रिविलेशन अभी हो रहा है ना, नो नो ये इतना गहराई वाला पहले आया नहीं, मेरे माइंड में भी नहीं आया कि ये कब. बच्चों ने पूछा कब, तब तो मैंने सोचना शुरू किया. अच्छा, तो क्या हुआ, आपकी एज में मुझे लगा कि यार ये सब नेचुरल होता गया, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा. या आपके पापा लोग बहुत सीनियर मैनेजमेंट वाले हैं, वो सब ये सब विचार करके स्ट्रेटजीज बनाते हैं, पर मेरी तो चीज़ें चलती गई. तो तब से क्या हुआ, मेरा झुकाव लाइफ का टुवर्ड्स गिविंग आया. एंड नाउ you know what you give, what you have, right? What do you give? Mango tree gives what? Mango fruit, oxygen, all that. Because that is what it has. Will it give pineapple? No, Why? because it doesn't have pineapple. Now as a child, मेरे में क्या था जो भर के था? Love. Absolutely बेटा, शाबाश बेटा, शाबाश. God had gifted me with that.
So what I did was I started giving subconsciously, and the result was everybody around fell in love with me. I fell in love with everybody naturally. I was a child, okay? That was not a chosen path. So love has one very, very special characteristic. The more you give, the more it gets back. And the magic is, it just does not get back in the same quantity. It Gets back somehow. multiplies and comes back to you. So, fortunately, with his blessings, my path as a child got fixed. A man who loves and distributes love gets love. Okay. Now, I have been a very, very average student. Academics was not my focus area ever. ओके पर एग्ज़ाम में पास तो होना पड़ता है ना, और सब सब्जेक्ट में पास होना पड़ता है. एंड सम सब्जेक्ट्स यू आर गुड, सम सब्जेक्ट्स यू आर नॉट गुड. आई वॉज डब्बा इन सम ऑफ द सब्जेक्ट्स, ओके, बट आई पास्ड एवरी टाइम. कैन यू लेट मी नो हाउ? Hard work. The more you write the exam, the more you get marks by that. I was an average student. Yeah, you tried to attempt every question you could. Yes, yeah. By being good with My there it is. My teachers were in love with me. I was in love with them. I was in love with them. Okay. So मुझे पास करने की जिम्मेदारी किसकी? मेरे टीचर की. मेरे को क्या चिंता है? पर फिर मैंने मेरे टीचर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं किया. मेरा रास्ता तो बेटा और कहीं था. It was getting towards philanthropy, it was getting towards giving. I did not have to choose my path. Now, God has been very kind to me at every step. अपन सबका, दैट वॉज नॉट कोई गॉड के साथ की रिलेशनशिप मेरी एक्सक्लूसिव नहीं है, आप सबकी है. एंड ही हैज क्रिएटेड पाथ फॉर ईच ऑफ यू. सो गॉड हैड ऑलरेडी क्रिएटेड अ पाथ फॉर मी विच आई डिड नॉट नो, विच आई डिड नॉट रियलाइज. मैं तो मेरी धुन में चल रहा था. ओके. एंड स्कूल में, हाई स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ. कैसे पास हुआ वो अभी नहीं बात करूँगा. मेरी बुक में लिखा हुआ है, टॉप, इफ यू आर इन सर्च ऑफ अ टॉप मैन्युपुलेटर who knows how to manipulate exams and teachers, get in touch with K.S. Chhabra, you know. बच्चों के सामने वो बोलना कोई मेरिट वाली बात नहीं है, बट ट्रुथ वाली बात है. वो सच की खोज में आए हैं, तो मुझे उनको सच बताना चाहिए ना. अब क्या हुआ बेटा, जहाँ भी मैं जाता था, आई इमर्स्ड एज ए लीडर. To become a leader was none of my goals, but it emerged that way. And by now, I had realized that if I want to become a net giver, I will have to be an extrovert in my personality, not in books. Because giving was an activity which was beyond books. Okay. अब I'll take a break for a minute and then continue. था ना, I was fascinated कि बॉस लोग कॉरपोरेट्स में, आपके डैड जो हैं कॉरपोरेट में बॉस लोग
ऐसा अपनी टेबल पर स्टाइल से बैठते हैं, टाई वाई सूट वूट पहन के, यू नो। और सेक्रेटरी, ब्यूटीफुल सेक्रेटरी, डिक्टेशन लेते हुए, माफ़ करना साहब, हाँ बॉस बोल रहा है एंड शी, अब वो टाइम चेंज हो गया, वो हमारे टाइम की बात। अब so don't worry about him, no more secretaries. So I have safeguarded you बच्चों के सामने। तो एम्बिशन होती थी, आई शुड बी एन एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट कैटेगरी। आपका शॉफर है, आपकी बड़ी गाड़ी है, आपका सिक्योरिटी वाला आपको सल्यूट कर रहा है। आई केम फ्रॉम अ वेरी एवरेज फैमिली। माई डैड वॉज अ बैंकर। सो ये सब चीज़ें मुझे बहुत बड़ी लगती थी। ओके, तो मैंने डिज़ायर की, आई वॉन्ट टू बी दिस। एंड यू नो वॉट इज द लॉ ऑफ नेचर? इट गिव्स you what you want. And I have tried that. My age is 64. And I have tried that for 64 years. And you get what you want. And that is what people now call it as the law of attraction. Okay? It was subconscious mind which was working in me. ओके, अब मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, विल गो डीपर इनटू इट। मेरी जो बुक 27 को रिवील होने वाली है, रिलीज़ होने वाली है, वो आप पढ़िएगा। उसके अंदर ये सारी चीज़ें, आई एम मेकिंग दैट बुक अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम फॉर व्हाट क्वेश्चन यू हैव पुट टू मी। ओके, सो वीडियोज़ दैट विल सेंड, रीडिंग मटीरियल एंड दैट बुक, and a compulsory read for you from this question point of view. So I became an industrialist, manufacturing pharmaceutical formulations, medicines, good pharma, good profit making business. And I was quite happy, successful. Now when I was 50 in my age, people usually say, oh आप 100 साल जीने वाले हो। अभी 100 साल जीना is no merit now, you know, but those elders used to give blessings. Oh, 100 साल भव, okay, that is no blessing now anyways. So when you are at 50, so hypothetically, so you have already crossed your 50%. So first 50% was subconscious giving. It was a subconscious taking, subconscious giving. And when I checked my balance sheet at the age of 50, I realized that kahin na kahin taking has become little more. So now it is turn of giving back to the society, giving back to humanity, giving back from where it has come from, mother nature. बेटा तेरा फ्यूचर बहुत बड़ा है, यू आर गोइंग टू बी ऑन द सिमिलर लाइन्स। बच्ची बहुत कुछ करेगी आगे। ओके, तो मेरे को ये लगा आई एम हैफ्टी, फिजिकल एक्टिविटी लो, तो दैट मीन्स प्रोन टू हार्ट अटैक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके, तो KS Chhabra is my name. My friends call me KS. I call myself KS. KS साले तेरे खाने पीने की आदतें ऐसी बुरी हैं, यू बी प्रिपेयर्ड कि तेरे को किसी दिन भी बिग बॉस का कॉल आ जाएगा। कम क्रिकेट देखते हो? अच्छा, क्रिकेट में टेस्ट मैच में क्या होता है, जब अपनी बैटिंग में बहुत सारे रन्स हो जाते हैं ना, तो कैप्टन डिक्लेयर कर देता है इनिंग्स, वहाँ से ऐसा इशारा करता है, that means batsman has to come back immediately, he cannot play the next ball. Okay, तो अपना कैप्टन वो है, और जब वो इशारा कर देता है, that means that was your last breath, you have no more breath, your atma is taken away by him, because your atma is a part of Paramatma. We'll get into this chapter some other time, you know, and your body becomes bhangar. You know Gujarati थोड़ी बहुत? हाँ,
ભંગાર થઈ ગઈ તમારી બોડી, એટલે તમારી बॉडी કાઢી દેવી પડે હવે। तो मैंने ये सोचा कि किसी दिन ऐसा कॉल आ जाएगा। तो मैंने अपने आप को पूछा कि तेरे ज़िंदगी के कोई ऐसे अरमान बाकी रह गए हैं क्या, एम्बिशंस, जो तू जाने के पहले पूरे करना चाहता हो? ये मेरे सबकॉन्शियस ने अपने आप से पूछा। तो अंदर से आवाज़ आई, तेरी बैलेंस शीट चेक कर ले। सब ऑटो मोड पे, मुझे कोई सोचना नहीं पड़ा। इट वॉज ऑल ऑन अ सर्टन मिडनाइट। ओके, तो जब बैलेंस शीट चेक करी, वैसे तो गिविंग एंड टेकिंग फॉर मी वॉज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, पर मैंने ये सोचा कि अगर मैं बिग बॉस के पास जब वापस जाऊं, मैंने एक पिक्चर इमेजिन किया, भगवान जी मैं वापस जा रहा हूँ, आई एम कॉलिंग इट स्वर्ग। आप स्वर्ग में जाओगे नर्क में जाओगे वो तो भगवान जाने हैं, पर मैंने एज्यूम कर लिया क्योंकि अच्छे कामों में बिलीव करता हूँ ना। मैंने देखा मेरी वहाँ एंट्री हो रही है। इट इज़ ऑल हाइपोथेटिक, आपके ख्याल, मेरी वहाँ एंट्री हो रही है। बिग बॉस अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है वहाँ, भगवान जी। ओके, तो फिर मैं वहाँ कैसा वेलकम चाहूँगा? अगर मैं बुरे काम करके गया तो भगवान जी होगा यार, चल जाने दे, एवरेज है, हाँ ठीक है, बहुत लोग रोज आते हैं। और अगर मैं सुपीरियर काम करके गया तो मेरी इमेजिनेशन क्या होनी चाहिए? भगवान जी अपने सिंहासन पर खड़े हो जाने चाहिए, मुझे देखकर खड़े होके तो तालियां बजाए, मेरे बच्चे, मैंने तेरे को भेजा था, तू कितने अच्छे काम करके आया, और भगवान जी मुझे गले लगा ले। बच्चों, वो कब होगा? हैं? जब हम गिविंग ज़्यादा करेंगे। गिविंग ज़्यादा करेंगे। तो ये सब ख्याल आए मेरे को एट द एज ऑफ 50। आई वॉज इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजी मेकिंग मनी। मैंने सोचा पैसों की दौड़ ऐसी होती है जो अनएंडिंग होती है। आप कभी रियलाइज नहीं करते कि आपके पास इनफ हो चुका है। आपकी भूख 2 रोटी की है, ईश्वर ने 20 रोटी आपके टेबल पर रख दी है, फिर भी आप रोटी 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 कर रहे हो, पागलपन है। तो मैंने कहा कि अब अगर मेरे पास इनफ हो गया फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ ऑल्सो, कि अगर मैं और न कमाऊं तो मेरी क्वालिटी ऑफ लिविंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस रात मैंने, ये सब उस रात की कहानी है, उस वन नाइट post midnight when everybody at home is asleep, I am on my working table with a table lamp and I go into meditation, auto meditation, without realizing what is happening. I said, okay. I thanked God. First, I am friends with him. We are very thick friends, 1-to-1. I thanked him. Boss, तूने मेरी कैपेबिलिटी से कितना ज़्यादा मुझे दे दिया है। थैंक यू बिग बॉस। तो यू नो व्हाट ही सेज, ए भाई छाबरा, खाली लिप सर्विस मत कर। इफ यू रियली मीन टू थैंक मी, सर्व माई पीपल हु नीड यू मोर। इफ यू रियली फील दैट यू हैव हैड इनफ, गो एंड हेल्प देम चेंज देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये मेरी अंदर से आवाज़ आई और मैंने उसको वचन दे दिया, भगवान जी मेरे को आशीर्वाद दे, अब मैं फुल टाइम सोशल वर्कर बन के इंसानियत की सेवा में लगूंगा। इट वॉज एट द एज ऑफ 50। इट टुक मी 3 years to sell my business because I did not want to keep my legs into 2 boats. I wanted to get and become full सेवानो बावो, नॉट भगवा वाला। मैं तुम्हारे डैड जैसा 3-piece सूट और टाई वाला बंदा था, एंड आई वॉन्टेड टू बिकम अ बावो, बट दिस इज द बावो विच आई हैड थॉट ऑफ एंड विच आई बिकेम, विच आई एम नाउ। सो 3 साल लगे मुझे बिजनेस डिसइन्वेस्ट करने में, एंड सिंस देन
आई एम अ फुल टाइम सोशल वर्कर। एंड अब मेरे में ये रियलाइजेशन आया है, बिकॉज ये 12 साल हो गए, 12, 13, 14 साल सर्विस करते करते अब मेरे में रियलाइजेशन आया, भाई मेरा क्रेडिट खाता तो रियली क्रेडिट में अच्छा हो गया। जो 50 की एज में था ना कि बराबर है कि नहीं, इट वॉज अ क्वेश्चन। नाउ आई नो आई एम रिच इन 2 वर्ल्ड्स। I am rich in money, very rich. I am very rich in money because it is all a state of mind, and I am very rich in karma. Okay, so now what next? You give what you have. Show the path to the people how to become rich. तुम तो रिच हो गए दोनों तरफ, पैसे की मेरे को कोई कमी नहीं है। पॉजिटिविटी, कर्मा, blessings, friendship with him, he is rich. So now the life cycle goes beyond. If God has brought you to this position, it is now your duty to guide बच्चा लोग, which I am doing at the moment. और मेरे कर्म आगे सुधारने के लिए ईश्वर जी ने आप दोनों को मेरे पास भेजा। ये रास्ता देने के लिए ईश्वर जी ने आपके डैड के साथ मेरी पहले रिलेशनशिप बनाई। पहले रिलेशनशिप उधर बनी, फिर इधर बनी। यू सी हाउ इज केमिस्ट्री वर्क्स। सो अब वो क्वेश्चन जो 50-50 वाला है बैलेंस हो गया, एंड नाउ फोकसिंग। आई हैव जस्ट इतनी सारी बात करी आपका एक क्वेश्चन जवाब देने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सब क्वेश्चन आपको पूछ लेना भी जरूरी नहीं है, जब आप चाहो तो। साहब लोगों, मेरा इंटरव्यू चल रहा है। बच्चे लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। भिंडे साहब, कई स्टोरीज मेरी नेचुरल कोर्स में आई जो अपनी बुक में नहीं आई हैं। सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट बनना शुरू हो गया। हाँ बोलिए। वो जनरल क्वेश्चंस में हमें क्वेश्चन लाइक फोर्स टू आस्क ऐसा क्वेश्चन। सॉरी, ये जो क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे ना आगे, अभी 2-3 क्वेश्चन वो लाइक फोर्स टू आस्क टाइप क्वेश्चन। डोंट वरी, फील वेरी फ्री है, वेरी फ्री बेटा, वी आर फ्रेंड्स। ओके, सो एक क्वेश्चन इसमें से ऐसा है कि मेजॉरिटी लाइक जब आप करते हो लाइक अभी वॉलंटियर्स हैं स्पेशल तो उसमें से मेजॉरिटी कहाँ से है? वो कोई डोनी बात से अट्रैक्ट होते हैं? देख, ईश्वर ने जब आपकी रचना करी ना, उसके अंदर वेरियस जीन्स डाले, सब तरीके के जीन्स डाले हैं, सब तरीके के। उसमें वन ऑफ द जीन्स दैट ही हैज पुट इन यू इज कंपैशन, इस दया, इस सेवा भावना। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, पर है सब में। तो मैं तो ये फॉर्मूला जान गया हूँ कि दया का भाव, कंपैशन का भाव तो हर इंडिविजुअल में है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, जब लोग मेरे टच में आते हैं तो आई प्ले द रोल ऑफ अ कैंडल, लाइटेड कैंडल। लाइटेड कैंडल लेकर मैं तेरे पास आया तो तेरी अंतरात्मा का जो सेवा भाव है, जितनी मात्रा में है, वो वाइब्रेशन भेज के बाहर इस लाइट से वो लाइट ले लेगा। लाइटिंग द कैंडल्स ऑफ सेवा। तो तेरे में जितना सेवा भाव है, मेरे से बात करके, ये मेरा विश्वास है, मेरा फेथ है, कोई क्लेम नहीं है। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम।
देखिए इसीलिए आपकी फिटनेस ज़्यादा अच्छी हो गई यहाँ पहुँचते पहुँचते तक, वजन थोड़ा ओछो થઈ ગયું. आओ पधारो. हाँ, मैं अब ये सेंटेंस यहाँ ख़त्म करूँगा क्योंकि वहाँ का टाइम हो गया. हाँ, सो दिस आई विल पुट इट एज स्पर्श. आप स्पर्श दो, जितनी तेरे अंदर सेवा भाव होगा कैच कर लेगा, और फिर स्पर्श दे के मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को तो कुछ लेना ही नहीं है किसी के लिए, मेरे को तो देना ही है. आई एम ओनली गिवर, नेट गिवर नहीं, ओनली गिवर, बिकॉज आई हैव नथिंग टू टेक. आई एम फुल विद एवरीथिंग, सो नथिंग टू टेक, ओनली टू गिव. और जब गिविंग का भाव होता है तो स्पर्श ज़्यादा अच्छा होता है. अभी मैंने पर्पसफुली डिसकंटिन्यू कर दिया, डिसकनेक्ट किया मेरे माइंड को. विल गो फर्दर अगेन. So if you don't mind, बोल बेटा. after you're done with this, can we like redo this? हाँ, एनी नंबर ऑफ टाइम. सुनो, एनी नंबर ऑफ टाइम्स until you are happy and satisfied. You can record it, you can video it, and we could repeat n number of times. There is no limitation at all. No limitation in love and affection. Thank you. Love you, bachcha, love.